खास बात तेलंगाना तफसील से। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए खुदकुशी की कोशिश करने वाले खम्मम डिपो के ड्राइवर की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। सुबह 11 बजे श्रीनिवास रेड्डी ने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। अपोलो डीआरडीओ अस्पताल में श्रीनिवास रेड्डी का इलाज चल रहा था। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने महलूक लीडर के अहलखाना से मुलाकात की और अपनी तायद का ऐलान किया। ड्राइवर श्रीनिवास रेड्डी की मौत के बाद अस्पताल के अहाते में कशीदगी देखी गई। एहतजाजी मुलाजमीन ने वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने कई एहतजाजी मुलाजमीन को हिरासत में लिया। सख्त सिक्योरिटी के बीच महलूक श्रीनिवास रेड्डी की लाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद श्रीनिवास रेड्डी की लाश को खम्मम मुंतकिल किया गया। कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ड्राइवर श्रीनिवास रेड्डी की मौत के लिए हुकूमत और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिम्मेदार है। శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆత్మహత్యకు పాల్పడాడు. నేను మరొకసారి కార్మికులను కొడుతున్నా, ఎవరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడద్దండి. మనం నమ్ముకున్న కుటుంబాలు నాగం చేయొద్దండి. ఇలా ఆర్టీసీ కార్మికులు ఒక్కరే కాదు, తెలంగాణ సమాజం పూర్వం మన ఎంబడింది, జాతి యావత్ మన ఎంబడింది. ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆస్తులు అమ్మే వాళ్ళు ఒకవైపు ఉంటే ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆస్తులు కాపాడుకుంటున్నాం. మనం ఖచ్చితంగా ఆస్తులు అమ్మే వాళ్ళు ఒకవైపు, కాపాడుకుంటున్నాం మనం ఒకవైపు ఉన్నాం. మనకు తెలంగాణ పౌర సమాజం మొత్తం మద్దతు ఉంది. దయచేసి కార్మికులు మనోనిబ్బరంతో ఉండండి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దండి, ఆత్మశైర్యంతో పోరాడండి. నిలబడి కలబడి గెలుస్తాం. ఖచ్చితంగా ఈ అంతిమ విజయం మనదవుతుంది. మీరు ఎవరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ అందరూ కూడా చెప్తున్నా. So we are trying to establish, we are trying to maintain peace in Telangana. Because of that reason, we are across the political parties, across the unions, we are supporting RTC unions. So government has to resolve all these issues. Definitely they will take their future course of action. We are going to support to the RTC unions. Ee roju Srinivas Reddy రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఉద్యోగస్తుడు చనిపోయిండు. ఈ చావుకు కారణం సంబంధిత శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్, శ్రీనివాస్ యాదవ్, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. ఎందుకంటే ఉద్యోగస్తులు చట్టబద్ధంగా సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చి సమ్మెకు దిగితే నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత 35 రోజులు సమయం తీసుకొని కనీసం చర్చలకు కూడా పిలవకుండా వాళ్లను రెచ్చగొట్టి అహంకారపూరితంగా మాట్లాడి అవమానించి వాళ్లను సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అని రాజ్యాంగంలో లేని ఒక ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి ఉద్యోగస్తులను ఆందోళనకు గురి చేయడం వల్ల ఈరోజు ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి, చంద్రశేఖరరావు గారి నిర్లక్ష్య వైఖరి, రెచ్చగొట్టే మంత్రుల మాటలతోటి ఈరోజు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी अपनी तायद का ऐलान किया है। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीमों ने वंटवारपुलो प्रोग्राम के तहत सड़क पर पकवान किया। एहतजाजी तलबा यूनियन के लीडरों ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में आरटीसी मुलाजमीन ने अहम रोल अदा किया था। इनके मुतालबात जायज हैं। 30 दिन कबल हड़ताल की नोटिस देने के बावजूद मसाइल पर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके सबब मुलाजमीन हड़ताल पर उतर आए। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 90 दिन भी जारी रही। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने हड़ताली मुलाजमीन से मुलाकात की और हड़ताली मुलाजमीन की तायद का ऐलान किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुजूर नगर ज़मीनी इंतखाबात में सीपीआई ने हुक्मरान जमात की तायद का ऐलान किया था। अब सीपीआई हुक्मरान जमात की तायद नहीं करेगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल हल करने में नाकाम रही। తెలంగాణలో ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంటుంది. హృదయ విదారకంగా ఉన్నది, ఆవేదన భరితంగా ఉంది. కేసీఆర్ మాత్రం చీమ కుట్టినట్టు లేదు. ఎందుకంటే 48,000 మంది కార్మికులు సెల్ఫ్ డిస్మిసల్ అంటే నిజంగానే సహజంగానే మనోవేదన గురి కాకతాం. ఇంతమందిని బలిపశు చేస్తారని అడుగుతున్నాం. 48,000 మంది అంటే వాళ్ళ వెనకాల వాళ్ళ భార్యలు, పిల్లలు అంతా ఎన్ని లక్షల మంది ఉంటారు. ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ చేయడం, 20% ప్రైవేట్ చేస్తారట, 30% ఐర్విత్ ఆర్టీసీ అట, అద్దె బస్సులు 50% ఆర్టీసీ అట. ఇది ఎక్కడ ఉండదు. ఇది చాలా అన్యాయం. ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఇంకోటి లేదు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు
ఆర్టీసీని సింగరేణిని ప్రైవేట్ చేస్తానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మొత్తం మరి తిరస్కరించి వ్యతిరేకించి తెలంగాణ సమాజం, ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాజం అంతా కూడా అన్నాడు. సిపిఐకి సంబంధించి మేము చాలా నిదానంగా ఈ సమ్మెకు సంపూర్ణంగా మద్దతిస్తున్నాం. आरटीसी मुलाजमीन ने हड़ताल में मजीद शिद्दत लाने का मंसूबा बनाया है. जेएसी मीटिंग के दौरान एक हफ्ता तवील एहतजाजी प्रोग्राम को क़तई दी गई. 19 अक्टूबर को तेलंगाना बंद की कॉल दी गई है. पेश खास रिपोर्ट. तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन अपने मुतालिबात को लेकर गुज़िश्ता 9 दिनों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं. हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र में कुल जमाती लीडरों और आरटीसी जेएसी लीडरों ने एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें बीजेपी के अलावा कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीएम, सीपीआई, न्यू डेमोक्रेसी के अलावा मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की. इस दौरान आरटीसी की जानिब से 19 अक्टूबर को रियासतगीर बंद की तमाम सियासी जमातों ने तायीद का ऐलान किया है. 13 తారీఖు నుంచి 18 తారీఖు దాకా మనం రకరకాలుగా కార్యక్రమాలు చేయవలసి ఉంది. ప్రతి కార్యక్రమానికి మనకు డిపో కేంద్రం, ఈ డిపో కేంద్రంగా జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలకు అందరం వెళ్ళి పాల్గొని దాన్ని విజయవంతం చేయాలి. రెండో బాధ్యత మన మీద ఏముందంటే ఆ కార్యక్రమానికి అన్ని సంఘాలు మద్దతు ఇచ్చేటట్టు చూడాలి. ప్రజా సంఘాలు, కుల సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు ప్రతి ఒక్కరూ కదిలేటట్టు చూడాలి, దాంట్లో భాగమయ్యేటట్టు చూడాలి. తప్పనిసరిగా ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె అనేది తెలంగాణ సమ్మెగా మారింది. ప్రైవేట్ సంస్థల మీద ఉన్న ఆసక్తి, ప్రేమ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల మీద లేదు. ఆర్టీసీ ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత అన్నట్టుగా సగం ప్రైవేటీకరణ ఆయన చెప్పేసినాడు, ఇంకా మిగతా సగం సమ్మె అయిపోయాక ప్రకటిస్తాడేమో అన్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానం ఉంది. ఇది అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మనం చెప్దామని 13వ తేదీ నుండి 19వ తేదీ వరకు మీరు ప్రకటించిన ప్రతి కార్యక్రమంలో బంద్ గురించి కూడా విస్తృతంగా మనం ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏఐఎస్ఎఫ్, ఎస్ఎఫ్ఐ, పీడిఎస్యు, టీవీఎస్, పీడిఎస్యు, టీఎస్యు, ఏఎస్ఎఫ్, బీసీ సంఘం, టీజీవీఎఫ్, ఎన్టీఎస్యు, టీఎస్ఎఫ్ అందరూ చాలా నిబ్బరతో ఉండాలని చెప్పి మీడియా ద్వారా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాం. అది కాదు, మనం చావద్దు, చావకుండానే ప్రభుత్వాన్ని దించాలని చెప్తూ అందరూ కూడా మేము దాన్ని తప్పకుండా లీగల్గా చూస్తామని తెలియజేస్తూ, మేమందరం ఇన్ని సంఘాలు ఇన్ని ఉన్నా, భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నా, మరి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అన్నట్లు ఎన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నా ఏకాభిప్రాయంతో ఆర్టీసీని రక్షించుకుని గదిలం. దానికి మీరు సంపూర్ణ మద్దతు పడిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, వేదికలు ఉన్న అందరికీ పేరు పేరున మా ఉద్యమం తరఫున, జేఎస్ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వారికి న్యాయం చేయాలని నీకు ఆలోచన లేదు అంటే ఎంప్లాయీస్ మనుషులు ద్వారా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నది, కానీ ఈ నియంత్రణ పాలన జరుగుతూ ఉన్నది. నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ తుంగలో తొక్కేస్తావు. ఇవాళ కొన్ని అంట 30% అంట ఏది ప్రైవేట్ చేస్తాడంట, 20% కిరాయికి తీసుకుంటాడంట. నీ జాగిరా రా బాబు, ఏమనుకుంటున్నాను? इजलास के दौरान टीजेएसी ने एक हफ्ता तवील एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया. 13 अक्टूबर को वंटावार पुलू, 14 अक्टूबर को रियासत भर के तमाम डिपोज पर एहतजाज, 15 अक्टूबर को रास्ता रोको एहतजाज, 16 अक्टूबर को स्कूली तुलबा की रैलियां, 17 अक्टूबर को धूमधाम प्रोग्राम, 18 अक्टूबर को बाइक रैली और 19 अक्टूबर को तेलंगाना भर में बंद मनाने का ऐलान किया. जेएसी लीडरों ने तमाम मुलाजमीन से एहतजाज में शिरकत की अपील की. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. आरटीसी में ड्राइवर और कंडक्टर्स की भर्ती के लिए एलामिया जारी किया गया है. हुकूमत ने आर्जी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को भर्ती करने का फैसला लिया है. आर्जी मुलाजमीन को रोजाना की असास पर मुलाजमत में लिया जाएगा. ड्राइवर को रोजाना 1500 रुपये जबकि कंडक्टर को रोजाना 1000 रुपये भत्ते पर लिया जाएगा. इसके अलावा मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टायर मैकेनिक को भी रोजाना 1000 रुपये भत्ते पर काम पर लिया जाएगा. महकमे आरटीसी ने दिलचस्पी रखने वालों से करीबी डिपो से रुजू होने की अपील की. आरटीसी मुलाजमीन की खुदकुशियों के वाकयात पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तशवीश का इजहार किया. उन्होंने खुदकुशियों का रास्ता तर्क करने की मुलाजमीन से अपील की. महमूद अली ने कहा कि मसाइल के हल की यकीन दहानी के बावजूद त्यौहार के मौके पर मुलाजमीन ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया.
हड़ताल से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। महमूद अली ने कहा कि किसी भी रियासत में आरटीसी को हुकूमत में जब्त नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी अभी नतायज बेहतर आने के बाद तेलंगाना में भी इस पर अमल होगा। ఆత్మహత్య చేయొద్దు, ఇది చేస్తుంటే నాకు బి దుఃఖం ఉంది. మన మంచి అందరూ తెలంగాణ మంచి తప్పకుండా అది ఆత్మహత్య చేయొద్దు. ఇది స్ట్రైక్ చేసినా గలత్ ఉంది. ఇది ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీ ఉంది. ఆనరబుల్ సీఎం గారు రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత బి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే అది బి చెప్పారు. ఈ ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్ కంటిన్యూ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు. ఈ 5th అక్టోబర్లో కంటిన్యూ అయింది ఈ రోజు తగ్గ బి. ఇది డిమాండ్ అంటే టోటల్లీ అన్న డిమాండ్ అంటే ఎక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడ బి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ట్రీట్ చేయలేదు. ఆంధ్రాలో చేసిన తర్వాత అవి గైడ్లైన్స్ రాలేదు. ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆయన డిమాండ్ కోసం క్యాబినెట్ పిలిచిన 6.5 గంటలు మాట్లాడారు. క్యాబినెట్లో ఎట్లా పాజిటివ్ నెగటివ్ ఏమైతే అంటే డీటెయిల్లో మాట్లాడు. ప్రజలకు అంటే చాలా కష్టమవుతుంది. महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तशहीरी मुहिम शबाब पर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में 50 उम्मीदवार खड़े किए हैं। मालेगांव शहर के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल कासमी की तशहीरी जलसे में तकरीर करते हुए इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम महाराष्ट्र में 50 नशिस्तों में से ज्यादातर नशिस्तों पर हरा झंडा गाड़ेंगे। अपनी तकरीर में अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। और जहां जहां मैं गया वहां पर कांग्रेस की बत्ती गुल करा रहा हूं और हम जहां जहां जाकर जमहूरी तरीके से अपना धमाका करते हैं वहां पर बीजेपी भी हिल जाती है। सुन लो आप मेरी इस बात को कि अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है। अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है कि औरंगाबाद में कल शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने तकरीर करते हुए कहा कि औरंगाबाद से हरे झंडे की पार्टी को निकालना है। औरंगाबाद में हरा झंडा है, उसको निकाल के फेंकना है। तो मेरी फितरत में है कि मैं अपने सियासी हरीफ का कर्जा बाकी नहीं रखता। मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पार्टी का हरा झंडा गाड़ा है। अब मालेगांव में यहां पर गाड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। हमने चेन्नई के समंदर के बीच पर देखा कि हमारे वजीर आजम समंदर के साहिल से कचरे को उठा रहे, बहुत अच्छा है। मैं वजीर आजम से गुजारिश करूंगा कि कभी मालेगांव को भी आइए, मैं भी आपके साथ यहां की गंदगी को उठाएंगे। आइए, कोई पैसा नहीं देते। मालेगांव में यहां की हमारी मां और बहनों में टीबी का मर्ज बढ़ता जाता है। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदारती इंतखाबात से काबिल मशावरती इजलास हाफिज पीर शब्बीर अहमद की क़यादत में मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में एनआरसी के सिलसिले में शऊर बेदारी और इससे मुताल्लिक़ जारी तशवीश पर इजहार ख्याल किया गया। इसके अलावा तेलंगाना व आंध्र में जमीयत उलमा हिंद की रुकनियत साजी मुहिम से मुताल्लिक़ मशावरत की गई। इजलास में 10 लाख मेंबर्स बनाने का निशाना मुक़र्रर किया गया। मौलाना पीर शब्बीर अहमद ने बताया कि आइंदा माह मरकजी जमीयत उलमा के सदर का इंतखाब अमल में आएगा। बजट लगाकर बताया गया पूरों को एनआरसी क्या होती है, किस तरह करना है हमको काम। ये सारे चीज़ें हमने उनको बताए और ये कहा कि आप अपने इलाकों के अंदर, अजला के अंदर, मंडलों के अंदर ये काम शुरू करिए। नहीं मालूम हुकूमत कब ऐलान कर देंगी। अजला के अंदर, मंडलों के अंदर जो पढ़े लिखे ख़वातीन हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे, उनको भी जो है कंप्यूटर में सारे चीज़ें फिट करके बताएंगे। वो लोग भी सारे ख़वातीन को जोड़कर और तो खुसूसन उनको जोड़कर ये बताएं कि भाई किस तरह करना, क्या करना है। हमारी मेंबर साजी शुरू हो चुकी है। आंध्रा, रायलसीमा, तेलंगाना के लिए 10 लाख का कोटा दे दिया गया हमारे पास। जमीयत उलमा हिंद के मेंबर साजी होगी और 10 लाख का जो है मेंबर बनाना है हमको पूरों को। ये दोनों रियासतों के अंदर बनानी है और वो शुरू करना है अभी से। और उसके बाद 1 जनवरी से जो है वहाँ इंतखाबात होंगे।
अजला के होंगे, उसके बाद जो है रियासत का इंतखाब होगा। तो ये 2-3 महीने जो मेंबर साजी करनी है और घर घर पहुँच के जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी करवाना है। और हमारे को जो कोटा मिला है वो 10 लाख का है। इसी सिलसिले में हमने सारी चीज़ें कोशिश की है। हमारे जो वज़ीर दाखिला, मरकज़ी वज़ीर दाखिला जो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि फलां हिंदू को नहीं, क्रिश्चियन को नहीं, बुद्धिस्ट को नहीं, सबको नहीं, उनको शहरियत दे दी जाएगी तो मुसलमान का नाम नहीं है। तो ये मजहब के बुनियाद पे कहाँ से आ गया? दस्तूर ने तो इजाज़त ही नहीं दिया है। आर्टिकल 14 और 15 बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि है नहीं, लिखना तो सब मजहब के नाम पर है। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी जो है ना मिनिस्टर हो या चीफ जज हो, जब हलफ लेता तो क्या लेता उसके अंदर? सेकुलर मुल्क, जमहूरी मुल्क, अवाम की खिदमत करेंगे। तो किसी तो अवाम कौन है? सभी हो गए। तो आप जो कह रहे हैं बार बार इनको दिया जाएगा, इनको शरीयत दी जाएंगी, मुसलमानों का नाम नहीं लेते, ये भी गलत है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी स्टडी सर्कल नामपल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज को बेगमपेट मुंतकिल करने की इतलात के दरमियान मुख्तलिफ कोर्सेस की तालिबात और सरपरस्तों ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी तालिबात यूनिवर्सिटी के सेंटर को उसी मकाम पर जारी रखने का मुतालबा किया। इन्होंने रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे पर अमल करें। हुकूमत इस इक़दाम से सेंटर में तकरीबन 1300 तालिबात को तालीम से महरूम न करे। बेगमपेट में शिफ्ट कर दे कहते, किधर किधर से कि दूर से आते हम सब लोग, तो ये करीब होता हम लोगों को बोल के इधर एडमिशन लिए, अच्छा पढ़ाते बोल के ये, और फीस भी पे करे और फैसिलिटीज अच्छे है बोल के हम लोग इधर पढ़ रहे। उधर किधर की बेगमपेट में डाले तो हम लोग कैसा पढ़ना? हमारे को बोले क्या बेगमपेट में डाल रहे बोल के? अंदर एक कॉलेज है इंद्र प्रियदर्शनी, वो भी है ना कॉलेज गवर्नमेंट का डिग्री का, वो दे सकते ना, हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे? अपना डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है हमारे कॉलेज हमारे को चाहिए है, हम लोग को वापस नामपल्ली में चाहिए। बेगमपेट कोई नहीं जाना चाह रहे, और जो बहुत दूर दूर से गर्ल्स आते हैं जिसको घर में अलाउ नहीं होता दूर जाना, इसी वास्ते हम सबको वापस यही चाहिए। दावा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, अगर ये दावे पे चलते हैं तो जो बच्चियों को अगर यहाँ से दूर होगा तो वो लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, उन लोगों को अलाउड नहीं होता, घर से परमिशन नहीं मिलती। इसलिए हम लोग को चाहिए कि वापस यही नामपल्ली में होना। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है और करीब में है। मैं टोली चौकी से आती हूँ, तो अगर बेगमपेट में शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोगों को जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होंगे। और 7 समुद्र पार रहने के बावजूद कुछ लोग अपनों की खिदमत का जज्बा रखते हैं। डॉक्टर रामनेनी फाउंडेशन USA की 20वीं सालगिरह तकरीब हैदराबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश के रियासती BJP सदर कर्नल लक्ष्मी नारायण के अलावा तेलंगाना के वजीर ई दयाकर, PV सिंधु व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान बैडमिंटन चैंपियनशिप PV सिंधु को तहनीत पेश की गई। इसके अलावा एक दीगर मुख्तलिफ शोबों में अहम खदमात अंजाम देने वालों को भी तहनीत पेश की गई। ఉంటూ కూడా మన కల్చర్ మన సంస్కృతి చాలా బాగా నేర్చుకుంది. I wish her all the very best, and once again I would like to thank Ramaneni Foundation for honoring me and giving me this award. ग्रेस कैंसर फाउंडेशन की जानिब से कैंसर से मुताल्लिक हैदराबाद में शऊर बेदार रैली निकाली गई। कैंसर को जड़ से खत्म करने के उन्वान के साथ नेकलेस रोड पर 10K, 5K और 2K रन का एहतमाम किया गया, जिसमें साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार, सियासी लीडर और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मुंतजमीन ने बताया कि कैंसर के खिलाफ मुहिम दुनिया भर में चलाई जा रही है। पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने बताया कि हमारी तर्ज जिंदगी में आई तब्दीली के सबब ही कैंसर जैसा जानलेवा मर्ज पांव फैला रहा है। फर्स्ट स्टेज में कैंसर का इलाज मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रोजाना कम से कम 30 मिनट की वर्जिश के जरिए हम कैंसर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। माहौलियात में आई तब्दीली इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में विशाखा बीच रोड पर वॉक का एहतमाम किया गया। इस दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में प्ले कार्ड के जरिए मुजाहरा किया गया। रैली में शरीक लड़कियों ने कहा कि माहौलियात को बिगाड़ने में इंसानी जिंदगी का अहम रोल रहा है। हमारी तर्ज जिंदगी में आई तब्दीली के सबब ही माहौलियात में तब्दीली आई है। अगर मुस्तक़बिल में यही सूरत हाल रही तो इंसानी जिंदगी को खतरा लाहक है। रैली में शरीक लड़कियों और खवातीन ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। गंगा नदी की तरह दोनों तेलुगु रियासतों में कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदियों में भी आलूदा
आलूदगी में इजाफा हो रहा है। अदाकार से सियासतदान बने जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने अपने दौरे हरिद्वार के दौरान ये बात कही। गंगा नदी में बढ़ती आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए माहिरीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पवन कल्याण ने भी शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि आज सनतों और कॉलोनियों से निकलने वाले फाजिल मादों को रास तौर पर नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसके सबब माहौलियात का तवाजुन बिगड़ गया है। आनंदपुर जिले के हिंदुपुर में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में कया कंपनी के 10 मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए। कया कंपनी मुलाजमीन को लाने के लिए जिस बस का इंतजाम किया था वो बस तवाजुन खोकर दरख्त से टकरा गई। तमाम जख्मी मुलाजमीन को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। करनूल के CITU दफ्तर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यूनियन के सदर मोहम्मद शरीफ ने बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की जानिब से रियासत में रेत के मसाइल को हल करने की मांग को लेकर 14 अक्टूबर को वज़रा और अराकीन असम्बली के घरों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेत की किल्लत के सबब मजदूर बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। करनूल के नंदी कटकुरा पेटा अपर प्राइमरी स्कूल को तरक्की देकर हाई स्कूल बनाने पर STU के लीडरों की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में MLC नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि वो काउंसिल में भी उर्दू मसाइल पर कई बार बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर मंजूर शुदा 660 स्कूल असिस्टेंट असामियों पर भी बहुत जल्द तक़र्रात होंगे। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला से बैकलॉग पोस्टों पर भी बात कर चुके हैं। करनूल के दरगाह हजरत शेख आखिर शाह मौला का 667वें उर्स तकरीब का आगाज 15 अक्टूबर से होगा। मुतवल्ली व सज्जादा नशीन सैयद हसन मोहिउद्दीन कादरी ने उर्स के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने कहा कि उर्स के सिलसिले में जलसा मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया जाएगा। करनूल के कदीम शहर के इलाके मोतिया मस्जिद के करीब मुहिबान अहले बैत कमेटी अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से वोटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कई अफराद ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। मुहिबान अहले बैत कमेटी अहले सुन्नत जमात के रुकन सैयद ताहिर पाशा कादरी ने हुकूमत से वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख में तौसी करने का मुतालबा किया। बज़्म उर्दू की जान बसे करनूल में मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। मुशायरे की सदारत अज़मत गढ़पुरी ने की। गुलाब बादशाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुशायरे की निज़ामत के फ़राज़ यासर बुखारी ने अंजाम दिए। मुशायरे का आगाज़ हाफिज़ अब्दुल वहाब की क़रअत कलाम पाक से हुआ। यासर बुखारी ने नात शरीफ सुनाने की सआदत हासिल की। अता कौसर कादरी, अब्दुल जलील इरम, यासर बुखारी, वहाब सफदर और अज़मत गढ़पुरी और सादुल हसन साद ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया।